Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th April 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about a quote, "Those who deny freedom to others deserve it not for themselves." And this topic is of course important from our syllabus paper 1 essay perspective, also useful for GS paper 4 ethics and integrity point of view. सो ये आर्टिकल स्लेवरी से रिलेटेड है इन द यूएस. तो यहाँ पे हमने दिखाया है द ट्रांस अटलांटिक रूट दैट वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट पीपल फ्रॉम अफ्रीका टू बी यूज्ड एज स्लेव्स इन द यूएस. तो कई सारे ऐसे कलर्ड लोग यहाँ के लोकल वसाल्स या लोकल लैंडलॉर्ड से ख़रीद करके जानवरों की तरह ट्रांसपोर्ट करके अमेरिका पहुँचाए गए टू वर्क देयर एज प्लांटेशन वर्कर्स. ज़रा देखते हैं यूएस, जो मॉडर्न यूएस है उसका पॉलिटिकल सिस्टम है, ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ. उसके बाद फिर आगे चलेंगे. देखिए, तो ये जो ईस्टर्न कोस्ट है अमेरिका का, दैट वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स. जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए वैसे ही दे कैप्चर्ड अमेरिका ऑल्सो इन द अर्ली फेज एंड दे ट्राइड टू मेक अमेरिका एज वन ऑफ देयर कॉलोनीज जस्ट लाइक इंडिया. लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर अमेरिका वहाँ पे रिवॉल्यूशन जल्दी आया, अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर फ्रॉम 1775 टू 1783 एंड अमेरिका बिकेम इंडिपेंडेंट मच बिफोर इंडिया कुड. तो लगभग ये जो 150 साल का जो अंतर है अमेरिका और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बीच में, दैट क्रिएटेड द मेन डिफरेंस. तो अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर 1775 to 1783 and that led to independence of the US from Great Britain and that led to establishment of the US. And the first president of the US, George Washington, and philosopher Thomas Jefferson, who is considered to be architect of US Constitution. So these were the earliest people who shaped the political institutions of the US. लेकिन ये जो colored लोग या आप कह सकते हैं ब्लैक लोग जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए गए थे यूएस के अंदर, वो लोग ऑलरेडी यहाँ रह रहे थे. और जब अमेरिका के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो थॉमस जेफरसन इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लिबर्टेरियंस ओनली. ही बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ राइट्स एंड ऑल. येट जब इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जॉर्ज वाशिंगटन द फर्स्ट प्रेसिडेंट, थॉमस जेफरसन द प्रोमिनेंट पीपल, they created the constitution. They created the constitution on the idea of equality, liberty, for which American constitution is known, but they retained the idea of slavery, though in less atrocious manner. सरल भाषा में ब्लैक या कलर्ड लोगों को अधिकार नहीं दिए गए. जो भी अधिकार थे वहाँ के इंडिजीनस या वाइट लोगों के लिए थे और ब्लैक कलर्ड पीपल वेयर एक्सक्लूडेड. तो ये बात हो गई विथ ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम with independence of America in 1783. बहुत बाद में 16th president of the US, Abraham Lincoln, what he did, उनके वक्त एक सिविल वॉर लड़ा गया for the rights of the colored people. When Abraham Lincoln was the president of America, 16th president of America, he had a lot of compassion for the colored people, black people living in America and who were treated like animals in America. And this reprehensible approach of slavery that continued till day during the time of Abraham Lincoln was severely criticized by Abraham Lincoln and he wanted to do away with this entire practice. वो slavery वगैरह को ख़त्म करना चाहते थे. He truly believed in the idea of equality. और फिर उस टाइम में हुआ क्या, अब्राहम लिंकन टुक एफर्ट्स टू अबॉलिश स्लेवरी एंड उसको कहते थे चैटल स्लेवरी. चैटल स्लेवरी इसलिए कहते थे क्योंकि द स्लेव्स वेयर ट्रीटेड लाइक अ कॉमोडिटी. दे वर ट्रीटेड लाइक अ पर्सनल प्रॉपर्टी टू देयर ओनर्स. दे कुड बी सोल्ड टू वन अनदर एंड दिस वॉज कंसिडर्ड टू बी कम्प्लीटली इनह्यूमन बाय अब्राहम लिंकन. सो ही प्रपोज्ड 13 amendment that was adopted late in 1865 that officially abolished slavery, and 14th amendment in 1867 broadened the definition of citizenship in the US, granting equal protection for the constitution to the people who had been enslaved earlier. लेकिन unfortunately for Abraham Lincoln, he was assassinated later on.
बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स टू एबॉलिश स्लेवरी इन द यूएस, क्योंकि बहुत सारा प्रोटेस्ट था अगेंस्ट अब्राहम लिंकन ऑल्सो, दो ही वॉज प्रेसिडेंट, बट मेनी पीपल सपोर्टेड द आइडिया ऑफ स्लेवरी and they could not accept the idea of equality with such slaves, and that is how some of the sympathizers of the idea of slavery assassinated Abraham Lincoln. तो एक सवाल आया था यूपीएससी में कि honesty may be the best policy but it comes with some cost. तो वहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट या एग्जाम्पल देने में आप अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल दे सकते थे कि ही वॉज ऑनेस्ट, ही हैड अ लॉट ऑफ एम्पैथी फॉर कलर्ड पीपल, बट he tried to do something for these colored people and that costed his life. तो जरा ये जो सिविल वॉर लड़ा गया था 1861 से 1865 के बीच में इन अमेरिका, उसको थोड़ा समझते हैं, तभी जा कर के हम ये करंट जो कोट है इसका कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड समझ पाएंगे. देखिए, अगर आप अमेरिका को देखें 1861 के आसपास, तो वहाँ के जो नदर्न स्टेट्स थे, ये नदर्न स्टेट्स, यहाँ पे स्लेवरी प्रैक्टिस नहीं की जा रही थी. दीज वेयर इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स, हाईली डेवलप्ड स्टेट्स, एंड दीज स्टेट्स वेयर नॉट प्रैक्टिसिंग स्लेवरी, फ्री स्टेट्स, जबकि दीज वेयर द स्टेट्स वेयर स्लेवरी वेयर बीइंग प्रैक्टिस्ड, इनको कहा गया है स्लेव स्टेट. तो इन दोनों ही तरह के स्टेट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन शुरू हो गए बाय 1861, क्योंकि प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन एंड ही वांटेड टू एबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी. और अब्राहम लिंकन को नदर्न स्टेट से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ था, बट सदर्न स्टेट्स ऑफ कोर्स डिड नॉट लाइक अब्राहम लिंकन बिकॉज सदर्न स्टेट्स वांटेड टू सस्टेन द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी. और फिर हुआ क्या, व्हेन अब्राहम लिंकन वाज वेरी मच डिटरमाइंड टू एबॉलिश स्लेवरी, फिर ये सदर्न स्टेट्स ने प्रोटेस्ट कर दिया एंड दीज सदर्न स्टेट्स स्टार्टेड टू डिमांड देयर फ्रीडम आउट ऑफ अमेरिका. दे वांटेड टू सक्सीड आउट ऑफ अमेरिका. इसी कॉन्टेक्स्ट में अब्राहम लिंकन साहब ने ये कोट दिया है कि these states they wanted freedom outside America, out of America, they wanted to succeed or move out of America, they wanted to have their freedom. उसी कॉन्टेक्स्ट में अब्राहम लिंकन साहब ने कहा है कि those who deny freedom to others deserve it not for themselves. आप लोग ब्लैक या कलर्ड लोगों को तो फ्रीडम देना नहीं चाह रहे, यू डिनाई फ्रीडम टू देम एंड नाउ यू वांट फ्रीडम फॉर योर सेल्फ, सो दैट मीन्स यू ऑल्सो डोंट डिजर्व सच फ्रीडम. और फिर शुरू हुआ सिविल राइट इंटरनल कन्फ्लिक्ट अमंग्स द नदर्न एंड सदर्न स्टेट्स. सदर्न स्टेट्स कह रहे थे कि हम आज़ाद होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, जबकि नदर्न स्टेट्स वर नॉट अलाउइंग सच सक्सेशन ऑफ सदर्न स्टेट्स, एंड दैट इज हाउ सिविल वॉर बिगैन फ्रॉम 1861 to 1865. It was fought. Ultimately, the Northern Confederate, they emerged victorious, and after that, already told you that this 13th Amendment was passed in 1865 by the end of this civil war, and that officially abolished slavery. And later on, the rights of the colored people were further expanded with help of 14th Amendment in the US Constitution brought in 1864. तो ये बात होगी अब अमेरिका के अंदर सिविल वॉर की, और उसी के साथ आपको ये जो कोट है इसका बैकग्राउंड भी समझ आ गया. अभी ये जो कोट है, दोज हु डिनाई फ्रीडम टू अदर्स डिजर्व इट नॉट फॉर देमसेल्व्स, इससे मिलते जुलते भी कई सारे आइडियाज़ हैं या कोट हैं. जैसे बाइबल का ये कोट है, डू अनटू अदर्स आज यू वुड हैव देम डू अनटू यू. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड. ये है आइडिया बाइबल का. इट मीन्स कंडक्ट योर सेल्फ टूवर्ड्स अदर पीपल अकॉर्डिंग टू हाउ यू वुड वांट देम टू कंडक्ट देमसेल्व्स टूवर्ड्स यू. सरल भाषा में, तो अगर आप दूसरों को आज़ादी नहीं देना चाहते हैं तो आप भी आज़ादी डिजर्व नहीं करते. मिलता जुलता आइडिया है, राइट. तो आपको दूसरों के साथ अगर खुद आज़ादी चाहिए, दूसरे तरीके से देखिए, अगर किसी को खुद आज़ादी चाहिए तो उसको पहले दूसरों को भी आज़ादी देनी होगी. दैट इज़ द आइडिया. उसके अलावा एक 1940s के काफ़ी प्रोमिनेंट फिलोसोफर हैं कार्ल पॉपर, उनकी थ्योरी है द पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस. वो भी इससे मिलती जुलती कॉन्सेप्ट है. तो द पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस कहता है कि अगर दुनिया में हर आदमी टॉलरेंट होने की कोशिश करे, इफ़ एवरीवन ट्राइज टू बिकम टॉलरेंट इन दिस वर्ल्ड, तो होगा क्या कि इनटॉलरेंट आइडिया विल इमर्ज. अगर दुनिया में हर आदमी टॉलरेंट होने लगे, एक्सेप्टेंस दिखाना शुरू कर दे, तो दैट वे द वर्ल्ड विल बिकम इनटॉलरेंट. वाई? इसी को नाम दिया उन्होंने पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस. वाई? बिकॉज सब लोग टॉलरेंट होंगे, लेकिन जो इनटॉलरेंट पर्सनालिटी के लोग हैं या कम्युनिटी हैं, दे विल नॉट ट्राई टू बिकम टॉलरेंट. तो धीरे धीरे उनके आइडियाज डोमिनेट होने लगेंगे, दे विल स्टार्ट डोमिनेटिंग अदर्स, and that is how the intolerant ideas will become the most prominent idea, and eventually
it will lead to creation of a culture and a society based on the idea of intolerance. इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है the quote given by Martin Luther King Jr. There comes a time when silence is betrayal. I hope you are able to link all such things. ऐसे ही ऐसे लिखा जाता है, अलग अलग आइडियाज़ को जोड़ करके लाया जाता है. तो देयर कम्स ए टाइम व्हेन साइलेंस इज बिट्रेयल, मतलब अगर कुछ गलत होता हुआ आप अपने सामने देख रहे हैं, तब भी अगर आप चुप हैं तो ये आपके बिहाफ पे गलत एक्शन होगा. टू कीप साइलेंस व्हेन यू आर सीइंग समथिंग रॉन्ग हैपनिंग, स्टिल यू कीप साइलेंस, दैट इज बिट्रेयल अगेंस्ट द एंटायर मैनकाइंड. इसी से एक रिलेटेड और कॉन्सेप्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का. द अल्टीमेट ट्रेजेडी इज नॉट द ऑपरेशन एंड क्रूएलिटी by the bad people but the silence over that by the good people. सबसे बड़ा कंसर्न या ट्रेजेडी है जब बुरा चीज़ को होते हुए भी अच्छे लोग देखें और चुप रहें. सो इससे रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. दोज हु डिनाई फ्रीडम टू अदर्स डिजर्व इट नॉट फॉर देमसेल्फ. लेकिन होता क्या आज के समाज में, ऐसे लोग जो दूसरों की फ्रीडम को कर्टेल करते हैं, दे इंजॉय अ लॉट ऑफ फ्रीडम. वाई? बिकॉज अदर गुड पीपल आर नॉट विलिंग टू राइज अगेंस्ट सच पीपल हु आर डिनाइंग फ्रीडम टू अदर्स. आई होप आप ये सारे आइडियाज़ को लिंक कर पा रहे हैं. जो लोग दूसरों की आज़ादी छीन रहे हैं उनको चुप कराने वाला, रोकने वाला कोई नहीं है. एंड दैट एज पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज़ द बिगेस्ट ट्रेजेडी. तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे, इनके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं. दैट विल हेल्प अस इन एसे एंड एथिक्स. तो जैसा कि हम लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की हिस्ट्री देख रहे हैं यूएस में, कैसे ब्लैक लोगों को ट्रांसपोर्ट किया गया, देयर दे वेर लिविंग एज ए स्लेव. फिर नदर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच में सिविल वॉर लड़ा गया, ऑफिशियली ख़त्म कर दिया गया स्लेवरी को 1865 में. बट आपको इससे भी बात समझ आ रही होगी कि स्लेवरी ऑफिशियली या लीगली ख़त्म किया गया, लेकिन कलर्ड लोगों के खिलाफ जो लोगों का आप समझिए डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस था वो तो कंटिन्यू रहा. वो इससे आपको पता चल रहा है कि द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ वाज असैसिनेटेड बिकॉज ही वाज सिंपैथाइजर टू द कलर्ड पीपल. तो लीगली भले ख़त्म कर दिया गया हो, जैसे हमारे देश में डाउरी लीगली ख़त्म कर दिया गया, येट डाउरी इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली. कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट अलाउड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, येट इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन वन फॉर्म और द अदर. ठीक वैसे ही अमेरिका के अंदर अमेंडमेंट ला दिए गए, 13th अमेंडमेंट, 14th अमेंडमेंट एंड देन 15th अमेंडमेंट अडॉप्टेड इन 1970 guaranteed the citizens right to vote would not be denied on the basis of race or color. तो हर तरीके से इक्वालिटी ला दी गई. लेकिन इसके खिलाफ जब कलर्ड लोगों को बराबरी का हक दिया जाना शुरू कर दिया गया तो उसके खिलाफ एक सोसाइटी इमर्ज हुई, एक ग्रुप इमर्ज हुआ, के ग्रुप, कू क्लुक्स क्लैन ग्रुप, that sought to disenfranchise blacks by using voter frauds and intimidation as well as extreme violence. तो आप समझिए कि एक तरीके का वायलेंट ग्रुप इमर्ज हुआ, के दैट वांटेड टू थ्रेटन और इंटिमिडेट द ब्लैक पीपल. और इस कारण से काफ़ी ज़्यादा समाज में वायलेंस होने लगा. तो अल्टीमेटली इस वायलेंस को सबसाइड करने के लिए 1890 में कानून पास किया गया, जिम क्रो लॉ. जिम क्रो लॉ सिंपली इसका मेन गोल था कि ब्लैक और बाकी लोगों के लिए जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उसको पूरी तरह से सेग्रीगेट कर दिया जाए. सेपरेट स्कूल, सेपरेट कार, सेपरेट बस डिपो, सेपरेट होटल्स, एवरीथिंग सेपरेट. एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो जिम क्रो लॉ है उसको स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल बताया. उन्होंने कहा कि ठीक है, इफ़ यू वांट टू हैव एवरीथिंग सेपरेट, लेट इट बी. सो दिस जिम क्रो लॉ वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सेपरेट बट इक्वल. बट ऐसा रियलिटी में कभी होता तो है नहीं. जब कलर्ड लोगों के लिए अलग चीज़ें बनाई दी गई, बस स्टॉप अलग बनाया गया, होटल्स अलग बनाए गए, पब्लिक प्लेसेस अलग बनाए गए, वाइट लोगों के लिए अलग बनाए गए. नेचुरली वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं या उनके जो ऑफिशियल्स हैं, जो ज़्यादा प्रोमिनेंट लोग हैं, दे वेर वाइट पीपल. सो दे फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ और मेंटेनेंस ऑफ द एरियाज क्रिएटेड फॉर वाइट पीपल एंड द एरियाज फॉर ब्लैक पीपल वेयर नेग्लेक्टेड. तो ये दैट लेड टू सम अदर फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस. तो ये जो प्रॉमिस था सेपरेट बट इक्वल, ये पूरा नहीं हुआ. सेपरेट तो हुआ लेकिन इक्वालिटी वाला प्रॉमिस ब्लैक लोगों के लिए पूरा नहीं हुआ. एंड दैट लेड टू मोर प्रोटेस्ट फ्रॉम द ब्लैक पीपल एंड अल्टीमेटली जिम क्रो लॉ that led to discrimination. And then an organization was created, National Association for Advancement of Colored People, NAACP, that started to fight for the rights of the colored people.
और उसी के लीडर थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने एक स्पीच दिया 1963 में, वेरी पॉपुलर स्पीच। इसको आप एस्से में या एथिक्स पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका स्पीच का हेडिंग था आई हैव अ ड्रीम, जहां वो कहते हैं इन हिज फुल स्पीच ही सेज आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. फिर over a period of time the speech of Martin Luther King Jr. became a symbol of protest against the white exploitators. US को काफ़ी जगहों से कंडेम किया जाना शुरू कर दिया गया for their racial abuse against the colored people. And then later on in 1963 John F. Kennedy, who was the presidential candidate at that time, he promised to pass a new civil rights of legislation if he become president in order to give equal citizenship right or civil rights to the colored people. And when he became president in 1963, he tried to bring this civil rights reform bill, but he also was assassinated. Another example कि how honesty comes up with a price. एक बार आपने देखा अब्राहम लिंकन के लिए, अब दूसरा आप देख रहे हैं जॉन एफ कैनेडी के लिए. He was also considered to be an upright person, very honest person, also assassinated. But yes, his successor Lyndon Johnson passed this civil right reforms bill, and this is how the segregation in the form of Jim Crow laws were reversed, and it mandated desegregation of the most of the public accommodation. तो जिम क्रो लॉ को रिवर्स कर दिया बाद में इस सिविल राइट्स रिफॉर्म बिल ने. लेकिन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक नहीं तो दूसरे तरीके से तो यूएस में आज भी प्रैक्टिस हो ही रही है. यू सी, बराक ओबामा became the first colored or first African American president. He was the 44th, 44 president में से एक बराक ओबामा became the colored person to become president, right? And उनका जो पूरा का पूरा presidential campaign था that was based on this idea only कि we need to address or curb the problem of white supremacy. और उसके बाद फिर क्या हुआ, बराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप अगेन won the election on this idea of white supremacy only. और यूएस में आज भी इन वन फॉर्म और द अदर कलर्ड लोगों के खिलाफ अट्रोसिटीज़ तो होती ही हैं. आपको याद होगा 2020 में द इवेंट और इंसिडेंट ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड, अ टैक्सी और कैब ड्राइवर हु वाज किल्ड बाय अ पुलिसमैन. ही केप्ट ऑन क्राइंग दैट आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, येट द पुलिसमैन he stifled his neck, suffocated him to death. After that, a lot of protest happened in the US. Every black colored people were showing banner like this कि I cannot breathe. This was a symbol कि the way atrocity is being practiced against colored people, it is suffocating, they cannot breathe. इससे रिलेटेड तो APSC प्रीलिम्स में 2020 में सवाल भी पूछा था, 2021 में आई थिंक. तो मुद्दा ये है कि आज भी वहाँ पे एक नहीं तो दूसरे फॉर्मेट में इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस तो चली रही हैं अगेंस्ट द कलर्ड पीपल. लेट अस कम बैक टू द कोट, द थीम, दोज हु डिनाई फ्रीडम टू अदर्स डिजर्व इट नॉट फॉर देमसेल्फ. और ये स्पीच, ये कोट दिया है अब्राहम लिंकन साहब ने इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिविल वॉर गोइंग इन अमेरिका फ्रॉम 1861 टू 1865, जहाँ पे सदर्न स्टेट्स वे डिमांडिंग फ्रीडम फॉर देमसेल्व्स. उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि अगर आप कलर्ड लोगों को आज़ादी नहीं दे सकते तो यू योरसेल्फ डोंट डिजर्व फ्रीडम. अभी इससे रिलेटेड मान लीजिए एस्से आ गया, फिर क्या क्या लिखेंगे. तो मेरे दिमाग में जो जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि ऐसा इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है, ऐसा मेन बॉडी में ये आइडियाज़ लिखे जा सकते हैं. लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट तो तरीका है नहीं कि यही संभव है. देयर कुड बी मैनी मोर वेज ऑल्सो टू ओपन एन एस्से. तो देखिए, हर संडे को इंडियन एक्सप्रेस में एक कोट आता है जो काफ़ी रेलेवेंट होता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से. तो अब हर मंडे को हम लोग उस कोट को डिस्कस करेंगे. आने वाले 3-4 महीने तक ये प्रैक्टिस करेंगे, कोट डिस्कस करेंगे जो संडे को आता है इंडियन एक्सप्रेस में. मैं मंडे को उस पर एनालिसिस लेकर के आऊँगा. हम लोग अलग अलग तरीके से सोचेंगे उस कोट के ऊपर. लेकिन मैं जिस तरीके से ओपन कर रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी उस कोट को उसी तरीके से ओपन करें. तो कमेंट सेक्शन में आप जा कर के बताइए कि आप किस तरीके से इंट्रो दे सकते थे. अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो इस तरीके से सब लोगों को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. मेन बॉडी में जो जो आइडियाज़ मैं दे रहा हूँ उसके ऊपर आप क्या क्या ऐड करना चाहेंगे, क्या उसमें और चीज़ें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. इस तरीके से वी ऑल विल गेट सम इनसाइट्स ऑन एस्से राइटिंग, एंड इफ़ इट वर्क्स सक्सेसफुली तो वी ऑल विल गेट सम मोर आइडियाज़ ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 months. तो हर मंडे को हम लोग एक एस्से करेंगे इस तरीके से. तो मेरे दिमाग में तो ओपनिंग इस तरीके से आया है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिख देते कि कब जब वो आज़ाद हिंद फौज को लीड कर रहे थे
from Rangoon, or from the and he was planning to attack British India from Eastern Front to make India free from British control. तो जब वो आज़ाद हिंद फौज को लेकर के बढ़ रहे थे आगे ईस्टर्न फ्रंट की तरफ, तभी उनको बात पता चली कि कस्तूरबा गांधी जी की डेथ हो गई है। और उस वक्त फिर नेताजी ने एक कॉन्डोलेंस मैसेज भेजा महात्मा गांधी को थ्रू हिज आज़ाद हिंद फौज रेडियो, और उस मैसेज में उन्होंने ये कहा कि नो बडी वुड बी मोर हैप्पी दैन अस इफ़ आवर कंट्री मैन सक्सीड ऑन देयर ओन इन लिबरेटिंग देमसेल्व्स थ्रू क्विट इंडिया मूवमेंट, जो महात्मा गांधी चला रहे थे। बट प्रोसीडिंग ऑन द एजम्पशन दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, फादर ऑफ आवर नेशन, यहाँ पे पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को इस नाम से संबोधित किया, फादर ऑफ आवर नेशन, बापू। इन दिस होली वॉर ऑफ इंडियाज लिबरेशन वी आस्क फॉर योर ब्लेसिंग। तो सरल भाषा में सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि देखिए बापू, हम लोग ज़्यादा खुश होते अगर आपके तरीक़ों से आज़ादी मिल जाती तो, लेकिन हमारा भरोसा है हम कि ऐसे आज़ादी नहीं मिलेगी, इसलिए हम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं हम उसमें आपकी ब्लेसिंग्स सीख कर रहे हैं। अब ये मैसेज रिफ्लेक्ट करता है कि सुभाष चंद्र बोस हैड अटमोस्ट रेस्पेक्ट फॉर गांधी जी, उनको बापू नाम से बुलाते हैं, बट एट द सेम टाइम हिज आइडियाज़ वेयर क्वाइट डिफरेंट। सुभाष चंद्र बोस जी के आइडियाज़, अप्रोच, फिलॉसफी काफ़ी अलग थे महात्मा गांधी से। और नेताजी बिलीव्ड इन दिस आइडिया। महात्मा गांधी के आइडियाज़ तो आपको पता ही है, फॉरगिवनेस, राइट, फॉरगिवनेस इज एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ऑल, नॉन वायलेंस, ये तो गांधी जी का अप्रोच तो आपको पता ही है। लेकिन नेताजी के अप्रोच, सुभाष चंद्र बोस जी के अप्रोच कुछ अलग थे। उनका मानना था कि दोज हु डू नॉट अलाउ फ्रीडम टू वी इंडियंस, ये ब्रिटिशर्स अगर हमें आज़ादी नहीं दे सकते तो हमें भी इनको चुपचाप से आज़ादी से आराम से रूल करने नहीं देना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन आर्ग्यू कि नेताजी हैड दिस आइडिया, दोज हु डिनाई फ्रीडम टू अदर्स, इन दिस केस टू अस वी इंडियंस, दीज ब्रिटिशर्स आर डिनाइंग अस फ्रीडम, दे ऑल्सो डू नॉट डिजर्व टू रिमेन फ्री एंड दे ऑल्सो मस्ट बी अटैक्ड। तो इस तरीके से ये वाला पूरा का पूरा एनेक्डोट महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ये वाली स्टोरी लिख करके मैंने साबित किया कि महात्मा गांधी के लिए रिस्पेक्ट तो बहुत था, लेकिन उनके अप्रोच में नेताजी को भरोसा नहीं था, और नेताजी की अपनी फिलॉसफी थी जो इससे मिलती जुलती है। और उसके बाद आप लिखते कि सिमिलर आइडियाज़ वेर एक्सप्रेस्ड बाय अब्राहम लिंकन ड्यूरिंग द सिविल वॉर अगेंस्ट ऑन द डिमांड ऑफ द सदर्न स्टेट सेक्सेशन आउट ऑफ यूनियन। ने कहा कि दोज पीपल सजेस्ट चैटल स्लेवरी, means they treat slaves as their own property and they are demanding for their own freedom. That is not possible. Similar ideas by Martin Luther King Jr. कि there comes a time when silence is betrayal. जब आप चुप बैठे रहें और जो लोग दूसरों की आज़ादी छीन रहे हैं उनको भी आप एट्रोसिटीज़ करने दें, तो दैट इज़ बिट्रेयल अगेंस्ट इंटायर ह्यूमन काइंड। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 3 फार्म लॉज, जो 3 फार्म लॉ लाई थी भारत सरकार 2020 में फॉर मॉडर्नाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये तीनों फार्म लॉ से कई सारे मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स को फ़ायदा हो सकता था, लेकिन इसके खिलाफ अग्रेसिव प्रोटेस्ट शुरू हुआ हमारे देश में बाय फ्यू फार्मर्स एंड फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट लेड टू विड्रॉल ऑफ द 3 लॉज। ये 3 कानून वापस ले लिए गए। और कैसे हमें पता लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स को इससे फ़ायदा होता? तो सुप्रीम कोर्ट का एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ऑन द फार्म लॉज, और सुप्रीम कोर्ट के इस पैनल ने फाइंड आउट करके बताया कि 85.7% ऑफ द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन सपोर्ट ऑफ द फार्म लॉज, लेकिन द नॉइजी माइनॉरिटी, हार्डली 10 से 12% फार्मर्स थे, दे वेयर नॉइजी बट इन माइनॉरिटी एंड दे प्रिवेल्ड ओवर द साइलेंट मेजॉरिटी। और ये साइलेंट मेजॉरिटी इन माइनॉरिटीज़ को लोगों के फ्रीडम को कर्टेल करने के लिए अलाउ किया। दिस साइलेंट मेजॉरिटी केप्ट क्वाइट, 85% पीपल केप्ट क्वाइट। अगर इससे फार्मर्स को फ़ायदा हो रहा था तो ये 85% जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन थे इनको काउंटर प्रोटेस्ट करना चाहिए था इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, बट दे केप्ट क्वाइट एंड दैट इज़ हाउ दे अलाउड दोज पीपल हु वर नॉट डिनाइंग फ्रीडम टू अदर्स टू हैव देयर ओन फ्रीडम, एंड दिस वॉज लाइक ए बिट्रेयल टू द इंटायर फार्मर कम्युनिटी। सो मार्टिन लूथर किंग का जो ये आर्ग्यूमेंट है कि दोज हु देयर कम्स अ टाइम व्हेन साइलेंस बिकम्स बिट्रेयल, इस केस में ये जो फार्मर्स का मेजॉरिटी वाला ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेजॉरिटी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हु वेयर इन सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स बिल, दे केप्ट साइलेंस एंड दैट इज़ हाउ दे डिड बिट्रेयल टू द मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स। इस तरीके से आप इस आर्गूमेंट को आगे लेकर के बढ़ सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं सिमिलर आइडियाज़ हैव बीन गिवन बाय कार्ल पोपर, पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस, कि अगर हर आदमी टॉलरेंस प्रैक्टिस करे तो दैट में लीड टू राइज ऑफ इनटॉलरेंस। वहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं। यू सी, इंडिया फॉलोड द
policies of Panchasheel, non-alignment. And what happened? We got attack from China in 1962. Pakistan attacked us in 1965. तो जितना हम टॉलरेंस प्रैक्टिस कर रहे थे उतना बाकी लोगों से इनटॉलरेंस मिल रहा था. अब देखो हमने कैसे अपना अप्रोच बदला है. पाकिस्तान ने उरी में टेररिज्म फैलाया, उरी अटैक कराया हमारे ऊपर 2016 में, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, राइट. उसने पुलवामा में अटैक कराया 2019 में, हमने एयर स्ट्राइक किया बालाकोट में. तो अब हम लोग ये अप्रोच अपना रहे हैं. ये है सुभाष चंद्र बोस वाला अप्रोच. और पहले हम लोग अपना रहे थे गांधी जी वाला अप्रोच विथ पंचशील एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. तो सुभाष चंद्र बोस वाला अप्रोच ये है कि दोज हु डिनाई फ्रीडम टू अदर्स, ऐसे लोग जो हमें फ्रीडम डिनाई कर रहे हैं, दे ऑल्सो डोंट डिजर्व फ्रीडम फॉर देमसेल्फ. उनको हम भी चुप नहीं बैठने देंगे. यू सी गलवान वैली में क्या हुआ है, जब चाइनीज सोल्जर्स ने हमारे सोल्जर्स के खिलाफ एट्रोसिटीज़ प्रैक्टिस करने की कोशिश की, वायलेंस करने की कोशिश की, तो हमारे सोल्जर्स ने भी जवाब दिया है. दिस इज इन लाइन विद दिस पॉलिसी. This principle is slightly, or you may say very, very different from the Gandhian principle of committing to the idea of non-violence irrespective of the circumstances or situation. उससे थोड़ा अलग है ये. फिर कंक्लूजन में मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया कि आप बाइबल के इस आर्ग्यूमेंट को लिख सकते हैं कि बाइबल कहता है लव दाई नेबर, अपने नेबर के साथ हारमोनियस तरीके से रहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता है कि आपको दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में आपको दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके साथ व्यवहार करें, राइट. तो इससे क्या आर्ग्यूमेंट मिलता है कि वैसे बाइबल भी हार्मनी की बात करता है, बट एट द सेम टाइम बाइबल सेज कि नो वन इज अलाउड टू ट्रीट अदर्स इन अनफेयर मैनर. दूसरों की फ्रीडम छीनने का हक किसी को नहीं है. एंड दैट इज हाउ यू कैन कोट विद दिस टॉपिक और हेडिंग, दोज हु डिनाई फ्रीडम टू अदर्स डिजर्व इट नॉट फॉर देमसेल्व्स. तो ये सारे आइडियाज़ हैं. थोड़ा डिफिकल्ट था, ट्रिकी था ये ऐसे का टॉपिक, बट ये सारे आइडियाज़ हैं, इसको आप अच्छे तरीके से कोट कर सकते हैं. इंट्रो या कंक्लूजन या मेन बॉडी में अगर आपके दिमाग में कुछ और आइडियाज़ आते हैं तो आप लिखिए. बाकी सारे लोगों को भी फ़ायदा होगा, एक हेल्दी इकोसिस्टम बनेगा, जिससे हम 3-4 महीने तक जब इसको करेंगे तो हम फिलोसफिकल एसेस में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट टेम्पो, ट्रोपोस्फेरिक इमिशंस, मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन, टेम्पो. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. न्यूज़ क्या है कि नासा ने लॉन्च किया है एक डिवाइस टेम्पो. इसका फुल फॉर्म तो आप देख ही चुके हैं. इसका मेन गोल है टू मॉनिटर एयर पॉल्यूशन अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एयर स्पेस. ये जो टेम्पो है, टेम्पो डिवाइस है, इसको लॉन्च करने वाला एजेंसी तो नासा है, लेकिन इसके लिए रॉकेट इस्तेमाल किया गया है स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट. ये जो टेम्पो डिवाइस है, इट विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन मेजरिंग पॉल्यूशंस एंड एयर क्वालिटी अक्रॉस एंटायर नॉर्थ अमेरिका ऑन आर्ली बेसिस ड्यूरिंग द डे टाइम. दिन के टाइम में ही ये आर्ली बेसिस पे पॉल्यूशन को मेजर कर पाएगा. टेम्पो विल हैव मैनी एप्लीकेशंस मेजरिंग लेवल ऑफ वेरियस पॉल्यूटेंट्स, प्रोवाइडिंग एयर क्वालिटी फोरकास्ट एंड ETC. तो टेम्पो जो अभी तक के एग्जिस्टिंग पॉल्यूशन ऑब्जर्वेटरीज हैं उनसे कैसे अलग है. हाउ टेम्पो इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्जिस्टिंग एयर पॉल्यूशन ऑब्जर्वेटरी. तो अभी तक के जितने भी एयर पॉल्यूशन ऑब्जर्वेटरी हैं स्पेस में, they are in low earth orbit, but TEMPO is hosted in geostationary orbit. geostationary orbit मतलब अबाउट 36,000 किलोमीटर हाइट पे. 36,000 किलोमीटर हाइट को जियोस्टेशनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे पूरा एक टाइम पीरियड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज 24 आवर, एग्जैक्टली इक्वल टू द टाइम पीरियड फॉर अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन. इससे होता क्या है कि अर्थ के किसी एक पॉइंट पे आप किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर दे तो वो उसी पॉइंट के ऊपर रहता है, क्योंकि जिस हिसाब से जिस रेट से अर्थ रोटेट कर रहा है उसी हिसाब से वो सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रहा है. तो टेम्पो विल बी इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, दैट मीन्स इट विल बी एग्जैक्टली अबव 1 पॉइंट एंड दैट इज हाउ इट विल बी मेजरिंग द पॉल्यूशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन ऑन आवरली बेसिस. टेम्पो को बाद में एक कॉन्स्टेलेशन में सेट किया जाएगा, मतलब डिफरेंट सैटेलाइट्स के साथ इसको सेट किया जाएगा. तो सैटेलाइट्स ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड साउथ कोरियन जियोस्टेशनरी एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग स्पेक्ट्रोमीटर के साथ टेम्पो को भी उसके कोऑर्डिनेशन में कॉन्स्टेलेशन में सेट किया जाएगा. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस. साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड. तो ऑलरेडी हमने एक आर्टिकल किया था 6 तारीख को, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया है
विथ हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग। तो वहाँ पे 3D प्रिंटिंग का क्या डेफिनीसन है, क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए, वो सब हमने देखा था। उसमें बस ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग ऐड कर देंगे कि 3D प्रिंटिंग की मदद से अब बेंगलोर के अंदर एक नया पोस्ट ऑफिस बनाया जा रहा है इस तरीके का। आप देख रहे हो 3D प्रिंटिंग की जा रही है टू मेक दिस पोस्ट ऑफिस। L&T ये 3D प्रिंटिंग करके ये पोस्ट ऑफिस बना रहा है। कॉस्ट लगभग 23 लाख रुपए का आसपास होगा। तो वो जो 3D प्रिंटिंग वाला मैंने आपको टॉपिक कराया था उसके पॉइंट वाइज में मैंने ये भी एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया है, क्योंकि 3D प्रिंटिंग के बारे में अगर कभी सवाल आ गया तो आपको करंट एग्जाम्पल्स देने होंगे कि 3D प्रिंटिंग से देखिए क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। तो वहाँ पर आप बोलना कि धवन 2 इंजन बनाया गया, क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया है। वहाँ पे आप बोलना कि एक पोस्ट ऑफिस बनाया गया विथ हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग इन बेंगलुरु। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अनीमिया, MMR एंड IMR इशूज इन असम। तो देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि असम के अंदर अनीमिया या IMR या MMR से रिलेटेड डेटा यहाँ पे दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको मगअप करना होगा। अगर बात की जाए एनीमिया की तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से एनीमिया अमंगस्ट असम वुमेन is on the rise। एनीमिया का केस बढ़ता जा रहा है। इट वॉज 46% in 2015-16 and that has gone up to 66% in 2020-21। एनीमिया के बढ़ने के पीछे कारण क्या क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं एनीमिया के केसेस बढ़ने के पीछे? तो बताया जाता है कि हैबिट ऑफ टेकिंग ब्लैक टी विथ सॉल्ट इंस्टीड ऑफ वाटर इन टी गार्डन कम्युनिटी, लो प्रोटीन डाइट, पुअर डाइटरी आयरन सोर्स, इससे एनीमिया होता है, एंड आयरन एब्जॉर्प्शन इन्हांसर, सॉयल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स यानी कि सॉयल रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, सॉइल से होने वाले जो पैरासाइट्स हैं वो हमारे बॉडी के एंटर कर जाते हैं, लेट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी, दीज आर द रीज़न बिहाइंड एनीमिया अमंगस्ट वीमेन इन असम। एनीमिया को कर्ब करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? मिशन तेजस्वी चलाया गया असम सरकार द्वारा, 2015 से चलाया गया है। अनीमिया मुक्त असम इनिशिएटिव लाया गया है। अनीमिया मुक्त असम इनिशिएटिव इज़ पार्ट ऑफ अनीमिया मुक्त भारत इनिशिएटिव। इट वाज लॉन्च इन 2018। इसमें वीकली आयरन और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दिलाए जाते हैं वीमेन को। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ब्लड बैंक एट डिस्ट्रिक्ट लेवल कराया गया इन ऑर्डर टू एड्रेस द सीवियर केस ऑफ अनीमिया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लाया गया है, अंडर विच फ्री चेकअप ऑन 9th of every month इज प्रोवाइडेड विथ हेल्प ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स टू डिटेक्ट एंड ट्रीट केसेज ऑफ अनीमिया। उसके अलावा नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 का MMR का डेटा है, IMR का डेटा है। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हर 1 लाख लाइव बर्थ पे कितने मदर्स की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो MMR इज़ क्वाइट हाई इन असम, अबाउट 300 पर 1 लाख बर्थ, which is much higher as compared to the national average of 167, which is matter of concern। लेकिन पॉजिटिव साइड है IMR का। IMR में हमने सबसे ज़्यादा ड्रॉप रजिस्टर किया है। IMR इज़ नंबर ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड बिलो 1 ईयर फॉर पर 1000 लाइव बर्थ। तो IMR हमारा था असम का 48 एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4, उसको घटा करके हमने कर दिया 32 एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5, विच इज़ ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट ड्रॉप फॉर एनी स्टेट। एंड यू सी हमने नेशनल एवरेज से नीचे चलाया है असम का IMR। नेशनल एवरेज है 35.2, असम का IMR है अबाउट 32। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस टॉपिक के बेसिस पे एक मेंस क्वेश्चन भी दे रखा है हमने। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले से लिखा हुआ था, मेरे पास टाइट फॉर्मेट में था तो मैंने यहाँ दे दिया है। आज ज़्यादा फोकस रखिए एस्से लिखने में, जो एस्से मैंने दिया है उस पर सोचिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, आइडियाज़ पॉइंट आउट कीजिए। ये सवाल का तो आंसर मैंने दे ही दिया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके डेटा मैंने अलग से यहाँ पे दे दिए हैं। तो डेटा रिलेटेड टू हेल्थ अमॉन्ग्स्ट वीमेन इन असम यहाँ पे मैंने दे दिया है। जो मेंस का फोल्डर कलेक्शन हम कर रहे हैं, कंटेंट कलेक्शन कर रहे हैं, ये धीरे धीरे आगे आपको मैं दे दूंगा। एंड दैट इज़ हाउ यू विल हैव मोर कंटेंट टू सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट इन द मेंस आंसर राइटिंग। तो ये आज का डेटा है, इसको तो यहाँ पे हमने देख ही लिया। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें पहला स्टेटमेंट गलत है। न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल बोथ आर लार्जर दैन सन इन जनरल, बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। और यहाँ पे पूछा है ईडू मिसमिस से रिलेटेड, तो ईडू मिसमिस पहला स्टेटमेंट तो गलत है, अरुणाचल को ये बिलोंग करते हैं। दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अगेन दे डोंट बिलीव इन हंटिंग टाइगर, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, 2 only। That's all from our side for today. Thanks for watching.